Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss Section 244 to Section 254 of Indian Penal Code 1860, which is a part and parcel of Chapter of Offences relating to coin. So we will discuss all these sections under this particular lecture, as well as what will be the punishment if any person has committed any offense against coin. We will discuss अंडर दिस लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 244 से लेकर 254 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पनिशमेंट क्या होगी, प्रोविजन क्या होंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे जा सकते हैं ऐसे कोई क्वेश्चन, वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Offences relating to coin, section 244 to 254. Section 244 deals with person employed in mint causing coin to be of a different weight or composition from that fixed by law. So whoever being employed in any mint lawfully established in India does any act or omits what he is legally bound to do with the intention of causing any coin issued from that mint to be of a different weight or composition from the weight or composition fixed by law. So if any person who is employed in any mint authorized by the government, and while working in that particular mint, if he compose a coin with a different composition which is fixed by the law, with a different weight which is fixed by the law, then such person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. Section 244 ये कह रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल करेंसी बनाने का जो कारखाना होता है, जो प्लेस है जहां पर करेंसी बनती है, जहां पर कॉइन बन रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट की अगर प्लेस है जहां पर कॉइन बन रहे हैं, अगर वहां पर कोई पर्सन काम कर रहा है, पर्सन नौकरी करता है, और वो पर्सन अगर कोई कॉइन का वेट में कम ज्यादा करता है या कंपोजिशन को डिफरेंट करता है, कुछ जो कि लॉ ने फिक्स किया हुआ है उसके अलावा अगर कंपोजिशन करता है या वेट करता है, तो उस सिचुएशन में ऐसे पर्सन को सजा होगी, और सजा होगी 7 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन। सेक्शन 245, अनलॉफुली टेकिंग coining instrument from mint. So whoever without lawful authority takes out of any mint lawfully established in India any coining tools or instrument. So whatever the tools or instrument which is being used in that particular mint for the purpose of making a coin, if any person took away any instrument or tools from that particular mint, then such person shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. अगर ऐसा पर्सन जो मिंट में जो नो कॉइन बनाने की जो प्लेस है, वहां से अगर उस प्लेस से कोई कॉइन बनाने का इंस्ट्रूमेंट या कॉइन बनाने का टूल वहां से लेकर कहीं बाहर जाता है, तो ऐसे पर्सन को सजा होगी, और सजा होगी 7 साल तक की सजा, और साथ ही साथ फाइन भी होगा। 246, fraudulently or dishonestly diminishing weight or altering composition of coin. Whoever fraudulently or dishonestly performs on any coin any operation which diminishes the weight or alters the composition of that coin. So if any person who employed in that particular mint, if he fraudulently or dishonestly perform on any coin any operation which diminishes the weight as well as the composition of that coin, such person shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. तो ऐसा पर्सन फ्रॉडुलेंटली है ना, फ्रॉड के इंटेंशन से अगर कोई कॉइन बनाते वक्त ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिसके जरिए उस कॉइन का वेट को कम करता है या उस कॉइन के कंपोजिशन को अलग कर देता है,
फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ, तो ऐसे पर्सन को 3 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन के प्रोविजन है। अ पर्सन हु स्कूप्स आउट पार्ट ऑफ कॉइन एंड पुट्स एनीथिंग एल्स इनटू द कैविटी अल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ द कॉइन। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ये बताया है कि कॉइन का बीच का हिस्सा निकालना और वहां पर कोई दूसरा पार्ट इंसर्ट करके कॉइन बनाना, ये सेक्शन 246 में वो पर्सन लायबल रहेगा फॉर अल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉइन के लिए। सेक्शन 247 फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली डिमिनिशिंग वेट और अल्टरिंग कंपोजिशन ऑफ इंडियन कॉइन। जो सेक्शन 246 था वो सिर्फ कॉइन से रिलेटेड था, सेक्शन 247 इंडियन कॉइन से रिलेटेड है। ऐसा पर्सन जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ अगर इंडियन कॉइन के साथ छेड़छाड़ करता है या ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ऐसा कोई काम करता है जिसके चलते इंडियन कॉइन का जो वेट है उसको अल्टर करता है, कम करता है, या उसके वैल्यू को कम करता है, या कंपोजिशन में कुछ बिगाड़ पैदा करता है, ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो 7 साल तक की सजा और फाइन के लिए वो हकदार रहेगा। सेक्शन 248 अल्टरिंग appearance of coin with intent that it shall pass as coin of different description। Whoever performs on any coin any operation which alters the appearance of that coin with the intention that the said coin shall pass as a coin of a different description। So if any person performs any operation by which he alters the appearance of that particular coin with the intention that the said coin shall pass as a coin of different description, तो कोई पर्सन एखादे कॉइन पे ऐसा ऑपरेशन करता है, ऐसा काम करता है जिसके चलते उसका अपीयरेंस ही अल्टर हो जाएगा, कॉइन का अपीयरेंस को ही बदल देता है और उस कॉइन को दूसरे कॉइन के जैसा बना देता है, दूसरे कॉइन के जैसा अगर बना देता है, उस सिचुएशन में ऐसे पर्सन को सजा होगी 3 साल तक की सजा एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, साथ ही साथ फाइन भी इंपोज हो सकता है उस पर। 249 सेक्शन 249 अल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ इंडियन कॉइन विथ इंटेंट that it shall pass as coin of different description। तो सेक्शन 248 में कॉइन था, सेक्शन 249 में इंडियन कॉइन। अगर कोई पर्सन इंडियन कॉइन के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है और ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करता है कि उसका अपीयरेंस को चेंज कर देता है और उसके अपीयरेंस को ऐसा बनाता है कि वो दूसरे कॉइन के जैसा लगे, एक कॉइन को फॉर एग्जांपल 1 रुपीज को कॉइन है उसको 2 रुपीज के जैसा अगर बना देता है अल्टर करके, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। 7 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन भी होगा। सेक्शन 250 डिलीवरी ऑफ कॉइन possessed with knowledge that it is altered। So whoever having coin in his possession with respect to which the offense defined in section 246 and 248 has been committed। सेक्शन 246 और 248 का ऑफेंस होता है कि कॉइन से रिलेटेड अगर कोई अल्टरेशन हो गए वाला है, अल्टर्ड कॉइन है, कॉइन में छेड़छाड़ की हुई है और अगर ऐसा कॉइन किसी के पोजीशन में है and having known at the time when he became possessed of with such coin that such offense has been committed with respect to it। सपोज मेरे पोजीशन में अगर कोई कॉइन आता है जो मुझे पता है कि सेक्शन 246 और 248 में इस पे प्रोविजन होने वाला है, इस पे ऑफेंस किया हुआ है और ये कॉइन अल्टर किया हुआ है, मुझे पता है, आई एम हैविंग नॉलेज एट द टाइम ऑफ टेकिंग दैट पर्टिकुलर कॉइन लेते वक्त मुझे पता था, एंड फ्रॉडुलेंटली और विथ इंटेंट दैट फ्रॉड में बी कमिटेड डिलीवर सच कॉइन टू एनी अदर पर्सन और अटेम्प्ट टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन टू रिसीव द सेम। अब मुझे पता है कि ये कॉइन को अल्टर किया हुआ है, ये कॉइन अल्टर किया हुआ है, मुझे नॉलेज रहने के साथ मैंने फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ या फ्रॉड करने के इरादे से वो कॉइन किसी और को डिलीवर किया या वो किसी पर्सन को रिसीव करने के लिए इंड्यूस किया, तो आई शैल बी पनिश्ड with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। तो मुझे 5 साल तक की सजा और फाइन के प्रोविजन है। 251 डिलीवरी ऑफ इंडियन कॉइन possessed with the knowledge that it is altered। सेम प्रोविजन कि इंडियन कॉइन सेक्शन 247 और 249 में इंडियन कॉइन को अल्टर किया गया, इंडियन कॉइन को अल्टर करने का ऑफेंस हुआ इस कॉइन से रिलेटेड, and having known at the time when he became possessed of such coin that such offense has been committed with respect to it। अब वो मेरे पास कॉइन आया फॉर एग्जांपल और मुझे नॉलेज है कि ये कॉइन अल्टर किया हुआ है, इंडियन कॉइन है और इसमें
छेड़खानी की हुई, अल्टर्ड किया हुआ है, but I fraudulently or with intent that fraud may be committed deliver such coin to any other person or attempts to induce any other person to receive the same। मुझे पता था कि ये अल्टर्ड किया हुआ इंडियन कॉइन है, ये ऑफेंस हुआ इस कॉइन से रिलेटेड, मुझे पता होने के बाद भी मैंने फ्रॉड के इंटेंशन से वो कॉइन किसी और को डिलीवर किया या किसी और को इंड्यूस किया वो रिसीव करने के लिए। तो इंडियन कॉइन का इससे रिलेटेड अगर ऐसा ऑफेंस होता है तो मुझे पनिशमेंट हो सकती है imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। 10 साल तक की सजा और फाइन के प्रोविजन है। 252 possession of coin by person who need it to be altered when he become possessed thereof। अब देखो, whoever fraudulently or with intent that fraud may be committed is in possession of coin with respect to which the offense defined in either of section 246 to 248 has been committed, having known at the time of becoming possessed thereof that such offense has been committed with respect to such coin, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो अगर whoever fraudulently or with intent that fraud may be committed is in possession of coin with respect to which the offense has been committed or known at the time of becoming possessed thereof the such offense has been committed with respect to such coin, के एक आधा पर्सन फ्रॉड के इंटेंशन से अगर या फ्रॉडुलेंटली या फ्रॉड कमिट हो सकता है ये इंटेंशन से, अगर कोई कॉइन जिससे रिलेटेड अल्टरेशन हुए हुआ है 246 और 248 में, अगर वो अपने पोजीशन में रखता है ये नॉलेज के साथ कि इसमें अल्टरेशन हो चुका है, तो ऐसे पर्सन को सजा होगी imprisonment which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो 3 साल तक की सजा और फाइन के प्रोविजन है। सेक्शन 253 possession of Indian coin by person who need it to be altered when he became possessed thereof। तो सेक्शन 252 कॉइन से रिलेटेड था, सेक्शन 253 इंडियन कॉइन से रिलेटेड है। अगर कोई पर्सन फ्रॉडुलेंटली whoever fraudulently or with intent that fraud may be committed is in possession of coin with respect to which the offense defined in say either of section 247 or 249 has been committed, having known at the time of becoming possessed thereof that such offense had been committed with respect to such coin। कि अगर फॉर एग्जांपल एक आधा पर्सन फ्रॉड के इंटेंशन से या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से ऑफेंस करने के इरादे से अगर कोई कॉइन अपने पास रखता है जिसका उसको पता है कि ये कॉइन से रिलेटेड सेक्शन 247 और 249 में ऑफेंस हो चुका है, ये अल्टर्ड कॉइन है, और ये पता होते हुए भी अपने पास अगर वो कॉइन रखता है वो पर्सन, तो क्या होगा? ही शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो इंडियन कॉइन से रिलेटेड अगर ऐसा ऑफेंस करता है 5 साल तक की सजा और फाइन के प्रोविजन है। सेक्शन 254 डिलीवरी ऑफ कॉइन एज जेन्यून विच when first possessed the deliverer did not know to be altered। Whoever delivers to any other person as genuine or as a coin of a different description from what it is, or attempts to induce any person to receive as genuine or as a different coin from what it is, any coin in respect of which he knows that any such operation as that mentioned in section 246, 247, 248, 249 has been performed, but in respect of which he did not at the time when he took it into his possession know that such operation had been performed, shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine to an amount which may extend to 10 times the value of the coin for which the altered coin is passed or attempt to be passed। सेक्शन 254 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अपने पास अल्टर्ड कॉइन अपने पोजीशन में लेता है, वो रिसीव करता है और रिसीव करते वक्त उसको पता नहीं था कि ऐसा ऐसा ऑफेंस इस कॉइन से रिलेटेड हुआ है, बाद में उसको पता चला, और पता चलने के बाद अगर किसी पर्सन को एज ए जेन्युइन बोल के डिलीवर करता है, समझ रहे हो कि जब मैंने रिसीव किया कॉइन तो मुझे पता नहीं था कि अल्टर्ड कॉइन है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अल्टर्ड कॉइन है, और उसके बाद पता चलने के बाद मैं किसी और को डिलीवर कर रहा हूं और ये कह के डिलीवर कर रहा हूं कि ये जेन्युइन कॉइन है ना, तो उस सिचुएशन में मुझे सजा होगी, और मुझे सजा होगी 2 साल तक की पनिशमेंट, या जितने के कॉइन मैंने डिलीवर किया है उससे 10 टाइम तक का मुझे फाइन
इम्पोज कर सकता है कोर्ट. सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.